Welcome students, we are learning animation tool Simping. It is an open source software. In previous lecture, we learned that how to create frame by frame animation and how to create a twinning motion. So we learned that frame by frame animation is slow and tedious. Better solution for that, twinning motion. So let us create an animation of moving the circle from left to right and then left again using keyframes. First define object on the canvas. So पहले हम एक rectangle draw करेंगे canvas पे, dark rectangle. So choose flower color for that. पहले इससे एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे, बाद में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, so draw the circle in rectangle. So ये ड्रॉ करने के बाद हम देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कैनवास पे रेडी हो गया है. अब हम टाइम लाइन को फोकस करेंगे क्योंकि हमारी टाइम लाइन इट शोज 5 सेकंड्स. सो हमें उस टाइम लाइन को कन्वर्ट करना है इनटू 2 सेकंड्स. तो क्लिक ऑन कैरेट, चूज एडिट एंड select properties, select time tab and edit time for 2 seconds. Now apply and click on OK button. So now we can see our timeline convert into 2 seconds. Now our object and timeline is ready for animation. So one more and important things, that is turn on animate editing mode. Please on it. And now we are using keyframe. So see, in horizontal panel it is a keyframe panel. Now we are learning about keyframe. So see how to create animation with keyframe. So पहले हमें इस सर्कल को लेफ्ट टू राइट हमें मूव करना है और वापस राइट टू लेफ्ट हमें मूव करना है. सो फर्स्ट यू कैन सी इन द टाइम बॉक्स दैट इज इट शोज 0 फ्रेम. सो फर्स्ट ऐड अ की फ्रेम फ्रॉम प्लस साइन. इट इज add new key frame button. So when you click on plus button, then it will shows 0 time, length 0f and jump. राइट. सो पहले हमें इसको सिलेक्ट करना है सर्कल को. सो यूज ट्रांसफॉर्म टूल, स्लाइटली उसको मूव करेंगे जहां से हमें शुरू करना है. सो नाउ इट विल नोटेड ऑन 0 फ्रेम. सो नाउ क्लिक ऑन 1 seconds. So when you click on 1 second, then it will shows our time box will shows first seconds. Now once again की फ्रेम को हम फिर से ऐड करेंगे by using add new keyframe button. Okay, so now see our keyframe add in keyframe panel. Now अगर ये 1 seconds पर हमारा स्लाइडर 1 seconds पे आता है तो ये सर्कल जो है, ये सर्कल इस तरह से, ये सर्कल लेफ्ट टू राइट हमें उसको ड्रैग करना है बाय यूजिंग शिफ्ट की फॉर स्ट्रेट वे. ओके, और लास्ट में 2 सेकंड सेलेक्ट करेंगे टाइमलाइन पे. टाइम बॉक्स में हम देख सकते हैं 2s. अगेन हमें की फ्रेम ऐड करना है. सो सिलेक्ट add new keyframe. You can see here
our keyframe add as a 2s length 0 frame. So now उसको वापस हमें राइट टू लेफ्ट उसको ड्रैग करना है. Okay, so our animation is ready here by using keyframe. हम देख सकते हैं यहाँ पे उसको प्ले करके. ओके, हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं. सो क्लिक ऑन कैरेट फाइल एंड प्रीव्यू. सो ये प्रीव्यू का जो विंडो है उसमें हम प्ले करके भी देख सकते हैं. इस तरह से हमारा ये एनिमेशन जो है, ये एनिमेशन हमारा रेडी हो गया है. राइट. सो पहले हम उसे सेव करेंगे बाय यूजिंग सेव बटन. सो डिफाइन द नेम as a keyframe 1, and you can see here that as I have said, by default it's extension. Click on save. Now rendering time. You are now familiar with rendering, so click on caret file and render. So when you select render, then you can see render settings dialog box. You know very well. As a target file, define as a GIF and click on render. Then it will shows in status bar rendering process. Now we can see that in status bar file rendered successfully. जो जिस फोल्डर में हमने फाइल स्टोर की हुई है उसी फोल्डर में ये जो हमने रेंडर की हुई फाइल है वो स्टोर होगी. सो हमें वो फोल्डर ओपन करना होगा. हम ये ब्राउज़र में देख सकते हैं जिप फाइल. सो स्टूडेंट्स, हियर वी ओपन द आवर फोल्डर. यू कैन सी हियर ये सिम्फिंग की फाइल है और ये फाइल जो हमने रेंडर की हुई है जिप फाइल वो है. सो ये हम वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे. सो सी केयरफुली. Select our files and open it. Now you can see here ये zip फाइल है जो हमने रेंडर की हुई है. आप अपने स्मार्टफोन में भी ये फाइल स्टोर कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्मार्टफोन ये zip फाइल सपोर्ट करता है. So you can send your friends also by creating this type of animation. So let us understand the keyframe panel. It display time. Once you can see here in time keyframe panel. So here it time it display which indicates the start time, length which indicates duration, and jump which are link used to jump to correct time, and description. So here in all the three keyframes the circle is on the left, but as discussed in our steps the second position of the circle is on the right. So now let us edit the circle at second keyframe. Suppose यहाँ पे हमने ये एडिट किया हुआ है 1 सेकेंड्स पे. सो हम 1 सेकेंड्स पे अगर क्लिक करेंगे टाइमलाइन की, ये देख सकते हैं हमने जो सर्कल है वो सर्कल का कलर चेंज किया हुआ है. इस तरह 1 सेकेंड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे की फ्रेम में से 1 सेकेंड सेलेक्ट करेंगे और उसके पैरामीटर्स पैनल में जाके हमने उसका कलर्स जो है ऑब्जेक्ट का, सो ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ट्रांसफॉर्म टूल. तभी हमारे जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स उस ऑब्जेक्ट या लेयर के लिए हम देख सकते हैं. सो अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट का कलर या कुछ चेंज करना है, सो फर्स्ट सिलेक्ट लेयर पैनल्स एंड देन क्लिक ऑन पैराम्स पैनल. देन यू विल सी
पैरामीटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ से हमने कलर चेंज किया हुआ है। अगर वो लेफ्ट से राइट तक जाता है तो ये सर्कल का कलर ऐसा होगा, और जब हम 2 सेकेंड्स पे हमने उस कलर को वापस रीड कर दिया है, सो हम उसको प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। सेलेक्ट फाइल, कैरेट फाइल एंड प्रीव्यू। once again you can see like this. Okay, so I play it, you can see once again. So students, हमने अलग अलग मेथड से सिम्फनी स्टूडियो में कैसे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं वो देखा। सबसे पहले हमने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन सीखा, विच इज टेडियस एंड स्लो। बाद में हमने ट्विनिंग मोशन देखा, और अब हम टाइम लूप के जरिए कैसे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। सो इफ यू वांट योर एनिमेशन to repeat again, use the time loop. Let us take an example of bouncing ball to understand time loop. We will also see how to duplicate a keyframe, which saves time in positioning the object in the animation all over again. In the example, we will be bouncing the ball on the ball. The animation will be created while using duplicate keyframe concept, and then use the time loop to show the bouncing continue till the end time of the animation. So सबसे पहले हम यहाँ पे जो बॉल को बाउंस करना है उसे ड्रॉ करेंगे। So यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। बाद में हमारी जो टाइमलाइन विंडो है, it is shows 5 seconds डिफॉल्टली। सो टाइमलाइन में हम कोई भी एडिटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि टाइमलाइन हमें 5 सेकंड्स की ही रखनी है। बाद में हम की फ्रेम का यूज़ करना है यहाँ पे। सो यूज़ की फ्रेम, और 1 बाय 1 हम स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे। सो फर्स्ट, if you want to start your animation, then turn on animate editing mode, so don't forget it. Okay, then if you want to select any object, then use transform tool. So now add keyframe. keyframe को ऐड करने के लिए 0 फ्रेम पर अभी हमारा टाइम बॉक्स शो कर रहा है 0 फ्रेम। सो 0 फ्रेम फर्स्ट हमें ऐड करना है। सो ऐड न्यू की फ्रेम पे हम क्लिक करेंगे, और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 0 फ्रेम वो ऐड हो गया है, और 0 फ्रेम पे हमें इसे नोट कराना है। सो स्लाइटली मूव इट, सो ये 0 फ्रेम पे नोट होगा। देन हमें आगे बढ़ना है। आगे जो फ्रेम है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। सो इट शोज 3F, सो हमें 3F को भी ऐड करना है। क्लिक ऑन ऐड न्यू की फ्रेम। हम देख सकते हैं यहाँ 3F जो नई की फ्रेम है वो ऐड हो गई है। हमें यहाँ से सर्कल को इस तरफ ग्रैब करना है। बाद में हमें आगे बढ़ना है। आगे की जो फ्रेम है उस पर क्लिक करके हम देखेंगे ये शो कर रही है 6F। ऐड करेंगे, सिलेक्ट करके उसको यहाँ से ये सर्कल को ऊपर ले जाएंगे। बाद में हम आगे बढ़ेंगे, और उसके आगे की जो फ्रेम है उस पर क्लिक करेंगे। इट शोज नाउ 9F, और उसको भी ऐड करेंगे। सो 9F को सिलेक्ट करके हम ये जो हमारा सर्कल है उसे यहाँ ग्रैब करेंगे। अब हमें आगे की जो फ्रेम है उस पर क्लिक करेंगे। इट विल शो 12F, हमें उसे भी ऐड करना है। सो हम उसे यहाँ से ऐड करेंगे, लेकिन
हमें ये एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन हमें मालूम नहीं है, तो वो जीरो फ्रेम को एग्जैक्ट पोजीशन उसने नोट की हुई है कि कहाँ से सर्कल स्टार्ट हुआ था, कहाँ से बाउंसिंग बॉल जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए जीरो एफ को हम यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे। सो एड न्यू की फ्रेम के बिल्कुल बाजू में हम देख सकते हैं डुप्लीकेट की फ्रेम का बटन है, उस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फ्रेम है वो डुप्लीकेट होगी। कौन सी फ्रेम डुप्लीकेट होगी? जीरो फ्रेम एज अ 12 फ्रेम वो डुप्लीकेट होगी। बाद में हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सो एड न्यू की फ्रेम टाइमलाइन पे हम आगे की जो फ्रेम है उस पर क्लिक करेंगे। हम देख सकते हैं 15F, इट विल शोज 15F, और हमें आगे अभी बढ़ना है। सो 3F जो है उसको डुप्लीकेट करेंगे। नेक्स्ट हमें आगे बढ़ेंगे अभी, और 18F जो 6F जो है हमारी की फ्रेम, उसे डुप्लीकेट करेंगे आगे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इट विल शोज 21F और 9 फ्रेम हम उसके लिए डुप्लीकेट करेंगे। तो हमारी जो की फ्रेम है वो ऐसे दिखेगी। यू कैन सी हियर हमने 4 फ्रेम की फ्रेम ऐड की है और 4 डुप्लीकेट की फ्रेम हमने यहाँ पे ऐड की हुई है। सो हमारा अभी जो एनिमेशन है वो एनिमेशन ऐसे हम प्ले करेंगे। हम स्लाइडर देख सकते हैं ऑरेंज कलर का, हम अगर उसे प्ले करेंगे तो वो स्क्रब करेगा टाइमलाइन को, और आगे के टाइमलाइन में हमने कुछ ऐसे हम प्ले कर दे, ये टाइमलाइन जो है वो स्क्रब होती जा रही है, लेकिन उस पर कोई एनिमेशन की हमने इफेक्ट नहीं दी हुई है, सो इसलिए वो एनिमेशन शो नहीं कर रहा है। अगर हम वापस फिर से प्ले करेंगे तो जीरो ऐप से वो स्टार्ट होगा। हम प्ले कर रहे हैं, हम देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा एनिमेशन जो है जो 18F तक ही है, वो इसलिए 18F तक हमें वो एनिमेशन जो है वो शो कर रहा है, लेकिन हमारा टाइमलाइन जो है वो 5 सेकंड्स का है बाय डिफॉल्ट। अगर हमें 5 सेकंड्स तक ये एनिमेशन को रिपीट करना है तो उसके लिए हमें टाइम लूप ऐड करना होगा, और टाइम लूप ऐड करने के लिए टाइम लूप इज अ लेयर, टाइम लूप इज अ लेयर। सो हमें टाइम लूप ऐड करने के लिए इस पे राइट जो सर्कल लेयर है जो हमारा है, वो सर्कल लेयर के ऊपर सर्कल लेयर को सिलेक्ट करना है फ्रॉम लेयर विंडो। लेयर पैनल में से सर्कल लेयर पर क्लिक करें, राइट क्लिक कीजिए उस पर, ऐड न्यू लेयर जो है उस पर क्लिक करके उसको चूज करके हम अदर उसका ऑप्शन है, और उसमें टाइम लूप ऑप्शन दिया हुआ है। हम जो अगर टाइम लूप पर क्लिक करेंगे तो टाइम लूप लेयर जो है वो ऐड होगा, और ये हमारा जो एनिमेशन है जो हमने 18 फ्रेम तक ही बनाया है वो 5 सेकंड्स तक वो रिपीट होगा। सो हम यहाँ पे प्ले करके देखेंगे। बेटर रिजल्ट के लिए हम हमारे प्रीव्यूज का भी यूज कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन कैरेट, यूज फाइल एंड चूज प्रीव्यू। यहाँ पे हम देखेंगे प्रीव्यू में हमारा जो 5 सेकंड्स का जो टाइमलाइन है वहां तक ये पूरा ये एनिमेशन ये हम देख सकते हैं। सो नाउ सेव द फाइल, सेव करेंगे फाइल को एज अ टाइम लूप। हम उसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और हमारे ये फोल्डर है यहाँ पे हम उसको स्टोर करेंगे। टाइम लूप बाय डिफॉल्ट इसका जो एक्सटेंशन है वो ऐसा ही एब्जर्ड है। सेव बटन पर क्लिक करेंगे। नाउ रेंडरिंग टाइम। सो रेंडर करने के लिए फाइल और रेंडर,
रेंडर उसका टारगेट फाइल जो है वो हम दिखाएंगे यहाँ पे जिप, सिलेक्ट जिप एंड चूज रेंडर। हम स्टेटस बार में भी देख सकते हैं रेंडरिंग, और ये जब रेंडरिंग ख़त्म होगा, हमारी फाइल अगर रेंडरिंग हो जाती है तो यहाँ हमें स्टेटस बार पर ही वो मैसेज डिस्प्ले करेंगे, वो फाइल रेंडर सक्सेसफुली। नाउ वी कैन सी हियर फाइल रेंडर सक्सेसफुली। और हम इस जीप फाइल को वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे। सो ओपन द वेब ब्राउज़र। कंट्रोल ओ के जरिए हम फाइल को ओपन करेंगे। हमारा जो डेस्टिनेशन फोल्डर है वो ओपन करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो फाइल है मौजूद यहाँ पे, टाइम लूप डॉट एस आई एम जेड और टाइम लूप डॉट पी एन जी और जिप। सो उसको ओपन करेंगे यहाँ से। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एनिमेशन जिप फाइल वो ऐसे दिखेगी। उसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। सपोज फ्रेम बाय फ्रेम में, सपोज यहाँ पे जो 3F है उसे हम एडिट करेंगे कि यहाँ पर जब भी हमारा सर्कल बाउंसिंग बॉल आता है तो उसका कलर चेंज करते हैं। पैराम्स पैनल के जरिए पहले सिलेक्ट होना चाहिए, पैराम्स पैनल सिलेक्ट, और उसमें से कलर सिलेक्ट करेंगे। बाद में आगे 6F के लिए फ्रेम को भी चूज़ करेंगे 6F में से, और यहाँ पर हम पैराम्स पैनल में जाके उसका कोई अलग कलर से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बाद में यहाँ पे 9F के लिए हम वापस की फ्रेम 9F को चूज़ करेंगे और पैराम्स पैनल में जाके और यहाँ पे हम अलग कलर चूज करेंगे। बाद में हम इस तरह से कोई भी कलर आगे के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। नाउ फॉर 12F, so select duplicate keyframe 12F and choose param panels. Now select any of color from colors window. Okay, then आगे बढ़ेंगे 15F, choose 15F keyframe, duplicate keyframe, choose params panel and यहाँ पर से कोई और कलर हम चूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर 18F और choose 18F from keyframe, choose params panel, और उसके लिए भी कोई अलग कलर्स यहाँ से चूज करेंगे। ओके, देन एट लास्ट select 21F and choose the keyframe 21F, params panel, और यहाँ से हम ये कलर चूज करेंगे। ओके, so now preview time. So click on caret, file and preview, select preview. Once again, हम यहाँ पे फिर से देख सकते हैं फाइल
प्रीव्यू, यहाँ पे हमें ये प्रीव्यू ऐसा दिखेगा। तो इसे रेंडर कर सकते हैं और हम उसकी जिप फाइल बना के हम अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। So students, in this chapter we learn how to create animation. Animate edit mode helps in recording the change made to the object's position at different time using the time bar. When not in animate editing mode, any changes made to the object or its parameter will not have an effect on the animation. The concept of keyframe and waypoint was discussed. So we also learned how to repeat an animation till the end time using the time loop layer. In the next chapter, we will learn more about the concept of layer and using it to give effects to the objects.